एक बार ये स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो तो क्या यार? लेफ्ट साइड जो माइक का आप ऑफ करके ऑन करे थे ना, उसके नीचे स्क्रीन का भी है ना, उससे एक बार देखो। एक मिनट है। डाटा ओके हो रहा है। ठीक है यार, अभी बराबर है मेरे हिसाब से। हाँ बराबर है। ठीक है, खैर। अ, इसका कंट्रोल किधर है यार? वेयर वी हैव कंट्रोल यार हियर, वेयर वी हैव कंट्रोल, इसका कंट्रोल किधर है यार अपना? सिस्टम 00 टाइम पे। सिस्टम 00 के अंदर है इसका कंट्रोल। अगर मैं यहाँ पे इफ आई सेलेक्ट 2 months, what happens simply, I will get 2 months data here. You can see if you refresh, then automatically you will get 2 months data. You will get 2 months data. How it is working? How it is working here? Our filter, you can see filter here. Simply you can see filter, system 01 time setting we are using, planning period filter weeks only line item we are using. So this line item how it will works, you can see here. Simply already we have seen here. So how it is working, system 01 time setting weeks only, how it is working, you can see here. Weeks only, how it is working, planning period filter, above line item it is taking. So above line item whatever the details you have, you can say 2 months data. You can see, you can have week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, 6, 7, 8. That's it, 2 months. Whatever we selected here in system 0 module, in 00 module how many months we selected? In system 2 00 how months many months? 2 months selected. That is the reason it is showing only 8 weeks. You can it is showing week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. Week 9, 10, it in March it is not showing. If I select here third month, then automatically what happens, it will show again 12 12 weeks weeks। data it will show. Okay na? So it will simply show 12 weeks data. You can see here 12 weeks data it is showing. After 12 or 13 weeks, 3 months data it is showing. After till March it is showing. April data it is not showing. You can see check boxes it is not showing for this month. So this is the reason why we are doing this one. So so anyway we created saved view here. So please if you didn't select here in system 0 time setting, you will not get error, you will not get proper answer. So that is why you should select here 2 months, then only you will get proper answer. So is it fine for everyone? How we got here inventory ordering module? Yes, कैसा है यार अपने को इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर डेटा कैसा है अपने को? यानी ये जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा अपने को, किधर से आ रहा अपने को? सिस्टम by जीरो, selecting time. सिस्टम जीरो टाइम सेटिंग के अंदर जो भी हम सेलेक्ट कर रहे उसके हिसाब से डेटा आ रहा ये। और सिस्टम जीरो से सिस्टम 01 को आ रहा। सिस्टम 01 में सिस्टम 01 का फिल्टर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये मॉड्यूल के अंदर। यानी 3 मॉड्यूल्स का जो है यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत केयरफुल देखना है यहाँ पे। यू कैन सी
Inventory ordering module, you create saved view. We included these 4 line items: beginning inventory, ending inventory, forecast demand, and safety stock target line items. So fine, you can see. So that is the reason we included these 4 line items here: beginning inventory, forecast demand, ending inventory, and safety stock target. Then what happens? So we pivot the module. SKU should be page, column, in column you should have time, rows you should have line item. Yeah, already we have did this one. So you can see, filter the data using planning period filter weeks only line item in system 01 time setting by week module. We are applying filter here. System 01, we are going system 01 module, and you should go to time, applies, you go to system 01 module here, you should select planning period filter weeks only, then you should click OK. Then automatically you will get this data, but before that you should select 2 months details here in system 0 module. System 0 module के अंदर क्या करना, you should select 2 months here, then automatically you will get data. Otherwise you will not get. If you didn't select here, you will not get any data. So everything we did. Yes, we completed this activity. ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो है यूएक्स पेज का एक्टिविटी है, वी नीड टू डू क्रिएट प्रोडक्ट रिप्लेनिशमेंट यूएक्स पेज. ये यूएक्स पेज क्रिएट करना है. सेव्ड व्यू क्रिएट करें वहाँ पे. उसके बाद जो है वो सेव्ड व्यूज यहाँ पे यूएक्स पेज में डालने का है. इसके लिए यूएक्स पेज क्रिएट कर रहे हैं. Hello. Yes. So you can wait for 1 minute. हेलो, मेरे को एक आधा घंटा दीजिए, मैं कनेक्ट कर दूँगा. ठीक है ना? So we need to create UX page. You can see here this UX page we need to create. So what should we do to create UX page? First of all, you can see here in my pages you should product replenishment name you should give for our page. Create UX page. So you can see, go to my pages here. My pages you should create new page.
What is the model we should take? Supply chain model. Parvez, level 2 supply chain model you should take. So whatever the model you have, supply chain model you should take. Then create. So after that they will not provide anything here. तो लेवल 1 के जैसा जो है पूरा एवरी डिटेल यहाँ नहीं देता है, यहाँ से जो है हमारा की समझ के करना पड़ता। तो इसके लिए अगर कुछ भी डाउट रहा तो लेवल 1 के अंदर कुछ यूएक्स पेजेस का एक्टिविटीज़ करना है, देखना है, फिर उसके बाद यहाँ करना है अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो। बट दे विल नॉट प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, सो दे विल गिव हिंट, दैट्स इट। You can see include following product SKU and times contact selectors. So we should include these things: product SKU and time contact selectors, and system 0 time setting by month module, planning period filter for UX saved view. So you can see here which module we should take. They are providing system 00 time setting module you should take, and in that one planning period filter for UX saved view. In this module you should take this saved view, UX saved view. You can see planning period filter already we created yesterday, this saved view. You should take this one, and instructional text for the end user to select the months they want to view and click the refresh button to update the page. Whatever the did so far, that is the same instruction. Which month data you want to take, you can select there and refresh the data. Automatically you will get that data. So create custom view for inventory ordering module for grid published to the UX page. So they are asking to create custom view for inventory ordering module. This is one thing. You can see this is one section. Already you can see here system 01 saved view you should take. You should add these details. So later you can see this custom view. So this is the second part. First of all we should start initially, then we can go later. So next step we can go later. Yes, you can see here. How many cards you have here? How many cards you have here? Product replenishment UX page is there. How many cards you can see here? Grid card, start card. One. How many grid cards you have here? कितने ग्रिड कार्ड्स है इसमें? 2 ग्रिड कार्ड्स है। एक छोटा है, एक फिल्टर वाला जो है यहाँ पे ऊपर जो है ये जो छोटा ग्रिड कार्ड है, और एक जो है नेक्स्ट ग्रिड कार्ड दूसरा है यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो है ये आपका हेडिंग है, और इसका जो भी डाटा है ये है, यानी ये 2 लाइंस का एक ग्रिड कार्ड है। बाकी का जो है ये जो बड़ा है ये दूसरा ग्रिड कार्ड है, 2 ग्रिड कार्ड है। तो ये हो गया। फिर इसके अंदर जो है डिफरेंट चार्ट्स है। नीचे क्या है आपके चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है। ये पूरा समझना है, यानी ये अपने को जो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऊपर दे रहा, वी शुड अंडरस्टैंड दिस वन। सो व्हाट आर द कार्ड्स वी शुड टेक एंड व्हाट इज द मॉडल यू शुड टेक, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन अंडरस्टैंड। ये देखने से अपने को एक 50% समझ में आता क्या करना है। तो उसके बाद कार्ड कौन सा लेना है, यहाँ पे कार्ड कौन सा लेना है यहाँ पे नहीं देता, सिर्फ ऐड करना है देता। सिंपली यू शुड include the following. Simply they are asking to include this one: product SKU, time contact selectors. Product SKU यानी क्या है आपका product SKU, ये है न्यू जॉब आर EN, आप product SKU है। टाइम जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है। जस्ट दे सिंपली दे विल गिव टाइम कॉन्टैक्ट सेलेक्टर्स, ये इंक्लूड करना है देता, बस कैसा करना है क्या करना, ज़्यादा स्टेप्स नहीं देता। तो मॉड्यूल कौन सा लेना है यहाँ पे, सिस्टम 0 टाइम सेटिंग का लेना है, और उसके अंदर प्लानिंग पीरियड फिल्टर सेव्ड यूएक्स पेज लेना है। सबसे पहले जो है फर्स्ट छोटा ग्रिड एक बनाएंगे, 2 स्टेप वाला जो है ग्रिड बनाएंगे। इसके लिए जो है ऑलरेडी हम पेज के अंदर कौन सा कार्ड लेना है, यहाँ पे ग्रिड कार्ड लेना है। मैं क्या करता हूँ, ग्रिड कार्ड लेके आया, यहाँ पे ड्रा कर दिया। देन कॉन्फ़िगर, वी शुड क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर ग्रिड। ग्रिड के ऊपर कॉन्फ़िगर ग्रिड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट डेटा सोर्स को, डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। कौन सा डेटा, कौन सा मॉड्यूल लेना है अपने को,
क्या दे रहा, मॉड्यूल कौन सा लेना है मेरे को? सिस्टम जीरो टाइम सेटिंग सेव। सिस्टम जीरो टाइम सेटिंग मॉड्यूल के अंदर प्लानिंग पीरियड यूएक्स सेव्ड व्यू लेना है, ठीक है ना। प्लानिंग पीरियड फिल्टर यूएक्स सेव्ड व्यू लेना है सिस्टम जीरो टाइम सेटिंग मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल व्यूज लेना है तो यहाँ लेना है, कस्टम व्यू कुछ बनाना है तो यहाँ लेना है। तो ऑलरेडी मॉड्यूल व्यूज के अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड व्यू मैं बनाया। तो सिस्टम जीरो टाइम सेटिंग मॉड्यूल के अंदर कौन सा लेना है मेरे को? विच वन आई शुड टेक? प्लानिंग पीरियड फिल्टर फॉर यूएक्स, दिस सेव्ड व्यू आई शुड टेक। इज इट करेक्ट और नॉट? यस, यस करेक्ट, करेक्ट। वी शुड अपडेट दिस वन। यहाँ पे कुछ मॉड्यूल व्यूज के अंदर कुछ भी जो है आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता यार। यहाँ पे जो है एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आता, सिर्फ मॉड्यूल लेना है, अपडेट करना है बस। अगर एडिट करना है तो किस में जाना पड़ता अपने को? कस्टम व्यू में जाना। कस्टम व्यू के अंदर कुछ मॉड्यूल को जो है पूरा एडिट करना है आपको, डायमेंशन पिवट चेंज करना है और जो है कुछ भी चेंज करना है तो आपको कस्टम व्यू के अंदर जाना है। मगर जो है वो रिस्की है यहाँ पे। ऑलरेडी पहले से सेव, इफ यू प्रिपेयर सेव्ड व्यू in while building itself, there is no need to go custom view and nothing, simply you can use. That is the reason I always suggest to create saved view in module itself. It is easy for you. Okay, so we created this one. So you can see here, after selecting this one, what they are asking, ये होने के बाद क्या करना है? So instruct text for instructional text for the end user to select the months they want to view. Click the refresh button to update the page. So इसके लिए क्या करना, कुछ भी डेटा हमारे को होना है तो क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दे के जो है जो मंथ होना है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। अपने मॉड्यूल के अंदर इससे पहले हम कितने मॉड्यूल का सेलेक्ट करे थे? इससे पहले कितने मंथ्स का मॉड्यूल डेटा सेलेक्ट करते यार हम? 2 मंथ्स का सेलेक्ट करे थे, इसलिए 2 मंथ्स का सेलेक्ट करे थे, इसलिए अपने 2 मंथ्स का डेटा है अपने पास। तो ये पब्लिश करना है, पब्लिश करें तो अपने डिटेल सेव हो जाते। इसके लिए अपने को यहाँ पे 2 मंथ्स का ये होगा। इसके बाद जो है आपको पब्लिश करें तो जो भी डिटेल से सेव हो जाता। पहले जो है आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्टर सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट सेलेक्टर के अंदर आपको क्या क्या होना है? टाइम होना है, और क्या होना है यार आपको? टाइम के साथ टाइम आ गया आपको, ठीक है। और जो है आपको प्रोडक्ट जो है होना है आपको। प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट इसमें आ जाता, नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आ जाता। ये जो है ये हो गया आपको, इसको सबसे पहले पब्लिश करना है। ये पब्लिश हो गया आपको एक डेटा, ये हो गया एक कार्ड हो गया आपका। ये जो है आपका कार्ड नंबर 1 हो गया प्लानिंग पीरियड फिल्टर। ये हो गया प्लानिंग पीरियड फिल्टर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड हो गया। इसके अंदर जो है 2 मंथ सेलेक्ट करें, हम भी 2 मंथ सेलेक्ट करें, जनवरी फरवरी। इसके अंदर यू कैन सी हियर जनवरी फरवरी डाटा वी सेलेक्टेड हियर, सो वी कैन गेट दिस डेटा। ये हो गया
फर्स्ट कार्ड, देन यू कैन गो टू नेक्स्ट कार्ड। इसके अंदर जो है नेक्स्ट कार्ड के लिए जाना है, क्रिएट क्लिक ए कस्टम व्यू फॉर इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल ग्रिड पब्लिश टू द यूएक्स पेज। एक क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है कस्टम व्यू क्रिएट करना है। कौन सा मॉड्यूल के लिए क्रिएट करना है कस्टम व्यू, कौन सा मॉड्यूल के लिए क्रिएट करना है? 01 ऑर्डरिंग मॉड्यूल। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल का कस्टम व्यू क्रिएट करना है इसमें। तो इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल जाना है, इसके अंदर और एक कार्ड ऐड करने के लिए क्या करना है, फिर से एडिट करना है, पेज को एडिट करना है। देन यू शुड क्लिक ग्रिड कार्ड सेलेक्ट करना है, ग्रिड कार्ड कॉन्फ़िगर ग्रिड, फिर से ग्रिड कार्ड लेना है। कैसा मालूम है अपने को, ग्रिड कार्ड फिर से ग्रिड ही लेना है। कैसा मालूम होता अपने को, टेबल नीचे का भी whatever you can see below table also you can see whatever they are showing data, that data also in grid itself. So that is the reason we are again selecting grid card. So you can see this one, so that is the reason we are selecting again grid मॉड्यूल। कौन सा लेना है, सेलेक्ट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के अंदर क्या लेना है, डेटा सोर्स के अंदर क्या लेना है, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल लेना है। क्रिएट कस्टम व्यू फॉर इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल ग्रिड पब्लिश टू द यूएक्स पेज। तो इसके अंदर क्या करना है, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल लेना है। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग मॉड्यूल कस्टम व्यू में लिया, तो लिया तो यहाँ पे क्या आता आपको, ऑप्शन, पूरे ऑप्शंस आते। यू कैन सी हियर, यू कैन डू पिवट, यू कैन डू फिल्टर, यू कैन डू एंड यू कैन सी शो और हाइड, यू कैन डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यू कैन डू, ओके ना, sorting you can do, reorder you can do, so each and every option you can see here, ठीक है ना यार। so ये ऑप्शन आप कस्टम व्यू के अंदर रहते हैं, you don't have this option in module views, so that is the reason we are selecting custom view, they are asking। so इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं, add filter based on system 01 time setting by module, planning period, filter line item। सो इसके अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले फिल्टर ऐड करना है, ऐड फिल्टर। फिल्टर के अंदर क्या ऐड करना है अपने को, फिल्टर के अंदर क्या ऐड करना है, फिल्टर के अंदर क्या है अपने को, फिल्टर के अंदर सिस्टम 01 टाइम सेटिंग बाय वीक, लाइन आइटम क्या है अपने को, कौन सा लाइन आइटम लेने के लिए बोल रहे हैं, प्लानिंग पीरियड, फिल्टर वीक्स ओनली। कौन सा लाइन आइटम लेना है, सिस्टम 01 टाइम सेटिंग बाय वीक मॉड्यूल, सो प्लानिंग पीरियड, फिल्टर लाइन आइटम ये लेना है। तो ये आपका फिल्टर हो गया। then you should apply this one। उसके अंदर प्लानिंग पीरियड फिल्टर के अंदर कितने वीक्स का डेटा है अपने को, प्लानिंग पीरियड फिल्टर लाइन आइटम के अंदर कितने वीक्स का डेटा है हमारा को, 8 weeks, 2 months का डेटा है ये, 2 months, sorry, 8 not weeks, 2 2 weeks, months. 2 months mean 8 weeks data you can Yeah. see, 8 week data you are getting। so if you did filter, filter is fine, we did completed filter, add conditional formatting to display confirmed purchase order receipt as green any time value is greater than 0। so इसके अंदर जो है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लाइन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट एज ए ग्रीन। सो क्या करना है, यहाँ पे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करना है। ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या करना है,
लाइन आइटम कौन सा लेना है? कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट। इसके अंदर देख लें, कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट एज ए ग्रीन। कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट जो है ग्रीन में रहना है, एनी टाइम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट जो है, कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट क्या है यहाँ पे? कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट आपका ये लाइन आइटम है। तो इसके अंदर क्या है? कन्फर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, वैल्यू सेम लाइन आइटम। आपको कलर कौन सा होना है? कलर कौन सा होना है यार? ग्रीन कलर होना है। ग्रीन। ग्रीन कलर होना है आपको। मिनिमम के लिए आप सेट करो मिनिमम वाइट कलर, मिड पॉइंट ये ऑप्शनल है। मैक्सिमम क्या रहना है अपने को? 1 रखेंगे। एक ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या रहना अपने को? ग्रीन कलर आना है, ठीक है ना यार? तो ये हो गया आपका कलर रेंज। कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट जो है लाइन आइटम, कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, सेम लाइन आइटम वैल्यू के लिए जो है हम वैल्यू जो है इधर से ही देखना है। इसके अंदर जब भी ग्रेटर देन 1 रहा तो क्या करना है मेरे को? ग्रेटर देन 1 है या 0 0 है, नेक्स्ट 1 है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे क्या होना है मेरे को? ग्रीन 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 आ गया। ग्रीन होना है। तो इसके लिए क्या है? मिनिमम वैल्यू एंटर। मिनिमम वैल्यू 0 है। मिनिमम वैल्यू नहीं दिया तो जो है नहीं ले रहा। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। तो अभी क्या होता? आपको जहाँ भी जो है ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होता? सिंपली यू विल गेट ग्रीन कलर। इज इट फाइन? यस। यस सर। यस सर। So we completed this one, conditional formatting. So next step you can see here. So add conditional formatting to display ending inventory as a red when value is less than the safety stock target value. So इसके अंदर क्या है? और एक जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। एंडिंग इन्वेंट्री रेड रहना है। कब रहना है ये? when value is less than safety stock target. So safety टारगेट से अगर एंडिंग इन्वेंट्री कम रहा तो क्या करना है? रेड आना है। तो इसके लिए क्या करना है? हम इसके लिए भी एक अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो इसके अंदर क्या है? लाइन आइटम। इसके अंदर क्या है? लाइन आइटम एंडिंग इन्वेंट्री है। तो एंडिंग इन्वेंट्री लाइन आइटम को जो है देखना है। वैल्यूज कहाँ से देखना है अपने को? सेफ्टी क्या कौन सा देखना है? सेफ्टी स्टॉक टारगेट। सेफ्टी स्टॉक टारगेट है, सेफ्टी एक्सेप्शन काउंट है। सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू कौन सा लाइन आइटम देखना है? वैल्यू सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू देखना है हमारा को। ये होगा सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू हो गया। तो इसके अंदर क्या होना है? कलर क्या होना है? मिनिमम कितना रहना है आपको? मिनिमम कितना रहना है? सेफ्टी टारगेट वैल्यू कितना है तुम्हारा? सेफ्टी टारगेट वैल्यू मिनिमम 955 है, ठीक है ना? 955 मिनिमम है आपका। 955 मिनिमम है। मिनिमम रहा तो ठीक है। अगर मिनिमम से 955 से बिलो रहा तो क्या करना है अपने को? 955 से बिलो रेड कलर। 955 से बिलो रहा तो रेड कलर आना है। तो आपको जो है 954 मिनिमम जो है 954 रखेंगे। मैक्सिमम कितना है? 955 रखेंगे। तो 954 रहा तो क्या कौन सा कलर आना है आपको? रेड कलर आना है, ठीक है ना? तो 955 रहा तो क्या है आपको? वाइट कलर ही रहना देना है, छोड़ देना है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 955 से एंडिंग इन्वेंट्री कम नहीं रहना है आपको, ठीक है ना? ये मिनिमम स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक टारगेट क्या रहता है अपना?
What is our safety stock target? 955. मिनिमम वैल्यू रहता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर 955 से बढ़ के रहा तो ठीक है, अगर 955 से कम हो गए, माइनस में चले गए, तो यहाँ पे क्या होना है, अपने को रेड आना है, ठीक है ना। सेफ्टी स्टॉक से मिनिमम जो है बढ़ के रहना है एंडिंग इन्वेंट्री, जब भी जो है अपना स्टॉक सही है, नहीं तो फिर अपन डेंजर जोन में है। तो सर कलर रेंज पूरा कंप्लीट रेड क्यों नहीं है? कौन सा है कलर रेंज कलर रेंज? कंप्लीट रेड नहीं है, शेड्स है। कंप्लीट रेड नहीं है, नहीं आता, रेड आता, रेड आ जाता। आप अप्लाई करते कि जो है आपको एंडिंग इन्वेंट्री मिनिमम मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ending inventory line item we are applying conditional formatting to ending inventory values from safety stock target. So below 954 we should get red color, midpoint is fine. So actually you didn't have any on below 954 values here. It is getting applied but you are not getting red color. Ending inventory के अंदर जो है मिनिमम वैल्यू एक बार चेंज करो ना, माइनस समथिंग 10,000 ऐसा डाल के देखो। क्या बोल रहे हैं? मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस में कुछ वैल्यू डाल के देखो। मिनिमम वैल्यू अगर तुम 0 डाल दिए, 0 डाले तो भी माइनस में नहीं आता, माइनस का है ना यार, माइनस में डालो बोल रहे। अगर मिनिमम वैल्यू -100 में डाल दिया, -954 -954 तो अपने को नहीं है, माइनस का वैल्यू जो है नहीं ले रहा, अप टू 0 जो है वैल्यू ले रहा, अप टू 0 वैल्यू लेता है इसका फॉर्मेटिंग के अंदर। तो इसके लिए जो है यहाँ पे नहीं ले रहा। अगर आपको बिलो 954 का वैल्यू कुछ भी रहा तो इसके अंदर क्या करता, आपको सीधा जो है आपको यहाँ पे रेड कलर दिखता, ठीक है ना। तो इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही है, 0 से बिलो नहीं लेता है। तो आपको जो है माइनस में रहने से नहीं ले रहा। खैर जो है आपको 954 से जो भी वैल्यू अगर इसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर रहा तो जो है आप कलर एक्सेप्ट कर देता, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो है, यस एंडिंग इन्वेंटरी में -90 है ना, देन दैट विल नॉट बी रेड इन कलर। नहीं, बिलो 0 इट विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है ना। अप टू 0 तक ही ले लेता कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिलो 0 इट विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है ना। 0 के अंदर ही रहना है जब भी लेता। अगर बिलो 0 के नहीं लेता बोल रहे हैं तो फिर इन्हें ऐसा मेंशन क्यों कर रहा कि रेड हो जाना अगर वो लेस देन 955 रहा, तो ऐसा क्यों मेंशन कर रहा वो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों सोच रहा बोले तो 954 से अगर कम रहा आपका एंडिंग इन्वेंट्री, आप रेड अलर्ट में है, यानी आपका स्टॉक जो है सही, आपका स्टॉक जो है बेसिक मिनिमम स्टॉक से कम है, आप जल्दी जो है स्टॉक ऑर्डर कर लो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब डिस्प्ले ही नहीं हो रहा तुमको कैसा मालूम पड़ेगा कि अरे ये कम हो गया बोल के?
नहीं नहीं, आपको यहाँ पे नहीं मालूम होता मतलब ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में दिख रहा ना, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आपको माइनस के लिए काम नहीं करता, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है सर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम एक बार 5000 दे के देखो, तो उसके लेस देन जो 4000 जो भी वैल्यू थे एक बार रेड होते या नहीं होते। क्या बोल रहे हैं यार? मैक्सिमम 5000 एक बार दे के देखो, उसके लेस देन जो भी वैल्यू रेड होते या नहीं होते चेक कर सकते। मैक्सिमम 5000 डालो बोल रहे। जी मैक्सिमम से कुछ भी नहीं होता यार, मैक्सिमम वैल्यू से कुछ भी। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम 5000 डाले तो दूसरे को भी आ जाता। देखो आपको रेड हाँ आ नहीं गया पूरा। मतलब हो रहा नहीं हो रहा, एक बार अपन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा नहीं चेक करने कंडीशनल, के वास्ते मैं हाँ हाँ, मैक्सिमम वैल्यू अगर 5000 डाला, 5000 डाला तो फिर आपको ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे पूरा रेड आ गया, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू अगर बढ़ के डाले तो फिर आ जाता आपको। क्यों -90 को भी रेड कंसिडर कर रहा? रेट कंसिडर कर रहा। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा आपको, वैल्यू सब वैल्यू क्या सेट करे, एक मिनट देखो। नहीं तो मिनिमम 955 डालना है शायद। नहीं एक मिनट, मिनिमम 955 रहा तो जो है आपको, एक मिनट, मिनिमम 950 नहीं होता है, एक मिनट से आपको 950 तक तो स्टॉक जो है बराबर है, ठीक है ना। तो सेफ्टी स्टॉक जो है 955 रहा तो आपको सही जोन में है, तो इसके लिए जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो है बढ़ के रहना आपका स्टॉक। तो ये जो है मैक्सिमम तो 5000 तो नहीं होता, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको 955 तो मैक्सिमम वैल्यू है, आपको जो है यहाँ पे रहना है। तो ये जो है आपको मैं इसका एक बार चेक करता हूँ यार, एक बार चेक करके अपडेट कर दूँ तो क्यों जो है ऐसा बिहेव कर रहा। तो इसका कुछ कंडीशन रहता है, इसके लिए ऐसा कर रहा। मैं इसका जो है देख के आपको अपडेट कर दूँ। अब टाइम भी जो है कम है, तो खैर जो है मैं क्या बोल रहा था, ये कंप्लीट करना है, 1 मिनट कंप्लीट कर देंगे। ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू डिस्प्ले कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट ग्रीन। तो जो रेड कलर जो है, ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू डिस्प्ले एंडिंग इन्वेंट्री एज ए रेड व्हेन वैल्यू इज लेस देन सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू। एंडिंग इन्वेंट्री जो है रेड वैल्यू रहना है, कब रहना है, व्हेन लेस देन सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू। सेफ्टी स्टॉक टारगेट वैल्यू 955 से कम रहा तो आपको रेड आना है, ठीक है ना। सेफ्टी स्टॉक से कम रहा तो रहना है, नहीं तो फिर बढ़ के रहा तो रहे तो फ़ायदा नहीं है इसमें। तो ये है आपको जो है यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक से जो है 955 से कम रहा तो ही चाहता, नहीं तो नहीं आना। तो ये जो है गलत है। तो खैर जो है ये आप वैल्यू निकाल दिए, तो खैर आपने इसलिए जो से 955 से कम नहीं था इसलिए नहीं आया। तो इसके लिए ये हो गया आपका सेफ्टी स्टॉक टारगेट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फाइनली डू नॉट शो सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट, पीओ सबमिटेड एंड कंफर्म पीओ डिलीवरी लाइन आइटम्स। ये थ्री लाइन आइटम्स को यहाँ पे जो है हाइड कर देना है। क्या करना है, से हाइड द लाइन आइटम्स, विच लाइन आइटम्स वी नीड टू हाइड, PO सबमिटेड लाइन आइटम्स। सो सेलेक्ट ऑल करके जो है उसको निकाल देंगे। सेलेक्ट ऑल करके 4 लाइन आइटम कौन सा निकाल देना है, PO सबमिटेड, पीओ सबमिटेड निकाल दो, और कंफर्म PO नेक्स्ट डिलीवरी, कंफर्म PO कंफर्म पीओ डिलीवरी, डिलीवरी, नेक्स्ट कंफर्म पीओ। और एक लाइन आइटम कौन सा है, पीओ सबमिटेड, कंफर्म पीओ डिलीवरी, सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट। ये 3 लाइन आइटम्स को निकाल देना। सेफ्टी स्टॉक एक्सेप्शन काउंट ये भी निकाल देना है। ये तीनों को हाइड करके जो है अप्लाई करो। ये बाकी का पूरे लाइन आइटम्स दिख रहे, ये हो गया आपका
लाइन आइटम्स और हाइड कर दिए बाकी लाइन आइटम्स को। एंड कॉम्बिनेशन ये हो गया पूरा आपका, ये सेकंड पार्ट का हो गया। उसके बाद जो है अप्लाई करो इसको जो है पूरा जो है सेलेक्ट करके जो होना है वो सेलेक्ट कर दिए, अपडेट कर दिए। और उसके बाद अपडेट करने के बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इसके अंदर जो है फाइनल जो है कॉम्बिनेशन चार्ट यूजिंग इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल चार्ट फॉर यूएक्स सेव्ड व्यू, ये जो है नेक्स्ट है, इसको पब्लिश करना है। पहले पब्लिश करो, पहले इसको जो है पब्लिश करना है एक कार्ड को। ये पब्लिश हो गया। नेक्स्ट जो है फाइनल कार्ड है। फाइनल कार्ड ये है कॉम्बिनेशन चार्ट यूजिंग, कॉम्बिनेशन चार्ट यूज बनाना है इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल से। तो इसके लिए और एक पेज और एक क्रिएट करो, नेक्स्ट और एक कार्ड यूज करो। कौन सा चार्ट लेना है यार, अभी कौन सा कार्ड लेना है फाइनली? लाइन चार्ट, लाइन और चार्ट कार्ड जो भी है सेलेक्ट करो, कॉन्फ़िगर कार्ड। इसके अंदर डेटा सोर्स कौन सा लेना है, डेटा सोर्स कौन सा लेना है? कॉम्बिनेशन चार्ट यूजिंग इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल लेना है, चार्ट यूएक्स सेव्ड व्यू। ऑलरेडी सेव्ड व्यू लेना है इन्वेंटरी ऑर्डरिंग के अंदर, जो कल जो क्रिएट करे थे इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल के अंदर चार्ट यूएक्स सेव्ड व्यू लेना है। यहाँ से सीधा सीधा लेके जो है इसके अंदर अपडेट करें। फिर उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके बिगिनिंग इन्वेंट्री, फोरकास्ट डिमांड, एंडिंग इन्वेंट्री। तो जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन चार्ट लेना है आपको। चार्ट कौन सा लेना है यार, यहाँ पे कॉम्बिनेशन चार्ट लेना है, कॉम्बिनेशन चार्ट यूजिंग इन्वेंटरी ऑर्डरिंग मॉड्यूल। सो क्रिएट कस्टम व्यू विद इन द सेव्ड व्यू ले सकते हैं या फिर कस्टम व्यू भी ले सकते हैं। यू कैन create custom view, but already we have created saved view, so that is the reason we didn't do anything. So just we selected chart view, then you should select here publish this page. So everything is fine, selected, then directly you should publish here. You should publish here. Yes, you can see, you should compare our screenshot with this one exactly. So इसके अंदर जो है एक Yes, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, so you can see here. So we created, first of all you should check our first card, January, February we are selecting. Yes, January, February we selected here, January, February. So you will get, we are getting data up to 2 months data you are getting in this one.
second card you can see 2 months data we are getting, so it is also fine. You can see beginning inventory forecast demand, each and everything you can see, week 1, week 2, week 3. So week 1, week 2, week 3, week 4 you can see, that is also fine. So finally you can see third thing, combination chart you should create. कॉम्बिनेशन चार्ट क्रिएट करें, इसके अंदर क्या है, सेफ्टी स्टॉक लेवल्स, फोरकास्ट डिमांड, बिगनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री. सो इसके अंदर भी जो है आपका वही है, सेफ्टी स्टॉक, बिगनिंग इन्वेंट्री, फोरकास्ट डिमांड, एंडिंग इन्वेंट्री एंड सेफ्टी स्टॉक टारगेट. तो यही जो है आपका कॉम्बिनेशन चार्ट भी हो गया. तो ये 3 कार्ड्स जो है हम क्रिएट करें और इसके हिसाब से जो है इसके अंदर जो है वैल्यूज सेम नहीं रहता यार. The values, the prototype presented in the course are not intended to be verbatim representation of what you built. For example, the number or line item names or prototype may not match actual data in the model. So data जो है मैच नहीं होता, but we should concept you should check. ठीक है ना, कार्ड जो है बराबर है नहीं है चेक कर लेना. और डेट इसके अंदर टेक्स्ट कार्ड, यस ऊपर जो टेक्स्ट कार्ड है ना वो ऐड करने की जरूरत है. क्या बोल रहे हैं यार? नो नीड टू ऐड टेक्स्ट कार्ड. हाँ, टेक्स्ट कार्ड ही ऐड करना है ना. डेटा जो है आपको पूरा इसके अंदर ग्रिड कार्ड के अंदर है, ग्रिड कार्ड ऐड करे. टेक्स्ट कार्ड कहाँ ऐड करना है अपने को? टेक्स्ट कार्ड का कुछ भी यहाँ पे नहीं है ना. ऊपर लेफ्ट में एक टेक्स्ट कार्ड है ना का. सेलेक्ट द मंथ विच यू सेलेक्ट रिफ्रेश अप्लाई टू प्लानिंग द पीरियड फिल्टर. इसके लिए जो आपको टेक्स्ट कार्ड का एक अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे. सबसे जो ऊपर कार्ड है ना, इसके बाद में एक टेक्स्ट कार्ड अप्लाई कर लेना इसके अंदर. तो एक जो है जो वो जो दे रहा ना डेटा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट कार्ड जो है इसके लिए काम पे है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट फॉर द सेलेक्ट मंथ्स यू वांट टू. ये जो है ये कर लेना. वहाँ पे जो डेटा है ना, ये जो है ये जो है टेक्स्ट कार्ड, एक आप इसके लिए एक टेक्स्ट कार्ड अप्लाई करो. इसके अंदर जो है ऑलरेडी एडिट के अंदर आ गया है. टेक्स्ट कार्ड को लेके एक लेफ्ट को इधर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एक टेक्स्ट कार्ड डाल दिए, कॉन्फ़िगर टेक्स्ट. सो इसके अंदर जो है मैं जो कॉपी पेस्ट करा ये जो है सेलेक्ट कर लिए. तो इसको अगर कॉन्टेक्स्ट अगर कलर वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है. सो सिंपली जो है जो टेक्स्ट होना है, बैकग्राउंड इसके अंदर भी कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिश करो. पब्लिश करे तो आपको जो है टेक्स्ट कार्ड जो है आ जाता यहाँ पे. ठीक है ना यार. ये टेक्स्ट कार्ड सेलेक्ट द मंथ्स, कौन सा मंथ्स होना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम. सेलेक्ट करके जो है वो डाटा एक्सटेंड होते रहता. जितना मंथ्स का डेटा होना है तो वो डेटा आपको एक्सटेंड होते रहता, और जो भी लेना है यहाँ पे डेटा अपने को एक्स्ट्रा दिखते रहता. इसको जो है क्या करना है, सेव करो डिटेल्स ऑफ. आपको कार्ड्स को कुछ एडजस्ट करना है तो ऐसा एडजस्ट कर ले सकते. ठीक है ना. कार्ड्स कुछ भी एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते. और इसको जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप कौन सा भी आपको कार्ड्स को एडजस्ट कर सकते. ये हो गया आपका कार्ड्स एडजस्टमेंट. पूरा एडजस्ट कर लेके फिर
पब्लिश कर देना। यस, पब्लिश करके जो है डिटेल्स अपने को जो अपना मेन जो है इसके अंदर है, तो ये चीज़ जो है हम देख ले सकते। तो ये हो गया आपका कार्ड जो है प्रोडक्ट रिप्लेनिशमेंट का जो है यूएक्स पेजेस है, ये इसके हिसाब से अपन बना दिए। यानी ये इसको देख के हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी डिटेल्स है अपना, तो इसके अंदर जो है सेम अपन बनाने की कोशिश करना। यही अपने को एक हेल्पिंग का ऐसा है, इंडिकेशन का ऐसा है, ये देख के फिर अपन एक एक स्टेप जो है आगे बढ़ते जाना, ठीक है ना यार। आर यू कंफर्ट, आर यू फाइन व्हाट वी डिड? Yes, sir. Yeah. सो एक एक स्टेप देख के करना है, तो देख के करके जो है आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रिप्लेनिशमेंट यूएक्स पेज। तो उसके कल जो है नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते, तो समझ में नहीं आता यार।